टेलीविजन की मदद से हम सबके दिमाग में एक चीज सक्सेसफुली डाल दी गई कि इंडिया में महिलाओं के साथ एक ईवल प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसका नाम सती था। और सती प्रैक्टिस को ब्रिटिशर्स ने एंड किया और भारतीय महिलाओं को उनका हक दिलवाया। पर क्या ये पॉसिबल है? जिस देश में बहुत सारी ऋषिकाएं यानी कि साइंटिस्ट महिलाएं हुआ करती थी, उस देश में महिलाओं को जबरदस्ती अग्नि में डाल दिया जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी वर्ल्ड फेमस शिकागो स्पीच में वेद और उपनिषद की इम्पोर्टेंस बताते हुए ये भी कहा था कि भारत में बहुत सारी ऋषि या ऋषिकाएं महिला थी। The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. They hold that the Vedas are without beginning and without end. It may sound ludicrous to this audience how a book can be without beginning or end. But by the Vedas, no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times. Just as the law of gravitation existed before its discovery and would exist if all humanity forgot it, so is it with the laws that govern the spiritual world. The discoverers of these laws are called rishis, and we honor them as perfected beings. I'm glad to tell this audience that some of the very greatest of them were women. हम सब अच्छे से जानते हैं, जब यूरोपियन भारत आए थे तो वो भारत की सोसाइटी को देखकर हैरान थे। मकुले, जिसने ब्रिटिशर्स को ये कहा था कि अगर उनको भारत पर राज करना है तो उनको सबसे पहले भारत के गुरुकुल को खत्म करना होगा। मकुले ये देखकर हैरान था कि भारत के अधिकतर आचार्य यानी कि टीचर्स महिलाएं थी। तो मैकॉले ये सब वर्णन कर रहा है कि हम तो सोच ही नहीं सकते हैं हमारे यहाँ महिलाएं गुरुकुल की आचार्य हो सकती है। वो कह रहा है भारत में आधे से ज्यादा गुरुकुलों की आचार्य महिलाएं, आधे से ज्यादा। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुरुकुलों की नहीं, हायर स्टडीज सेंटर में भी यही है। जब भी कोई वेस्टर्न कंट्री से भारत में आया करते तो वो ये देखकर हैरान हुआ करते थे कि कैसे भारत की महिलाएं इतनी ज्ञानी हो सकती हैं, कैसे वो लीडर्स बन सकती हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में महिलाओं को कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते, हमेशा उनको दबाकर ही रखा जाता था। पर भारत में महिलाओं की कंडीशंस बिल्कुल ही अलग थी। फिर ऐसा क्या हुआ, भारत में महिलाओं को जिंदा जलाना शुरू कर दिया। एक बार ये क्लिप ध्यान से सुनिए। Suddenly, what happens in the 18th, 19th century, the situation changes. The East India Company, they become masters of Bengal. And they are very clear that they have come to India to make money, not to spread, civilization. So at that time, the missionaries, they are not allowed to enter British territory. And if you come, then you're sent back on the next ship. So the British, the missionaries, they want to tell Parliament that, India is a land of evil customs. Yeah, we are needed to save and we are very much needed over there. Yeah. So they concoct figures of thousands, 50,000, 1 lakh women. All sorts of things, yeah. Emulating. But the interesting thing is that these accounts only come from Bengal. And Bengal does not have a tradition of sati. Which is in Rajasthan. Sati and Johar are basically in Rajasthan. So the actual empirical evidence would show it's in Rajasthan, but the people, British in Bengal, were making it up. Yeah, and I just want to say that after independence, there have been about 40 cases of sati, around 40 cases. Where? In India. All over India. All over India, and 2/3 of them are in Rajasthan and none in Bengal. So, it is amazing that we are supposed to believe that the moment Bentinck abolished sati by a stroke of a pen, from next day in Bengal, sati stopped. See, I want my viewers to understand, a lot of people think that all this colonization was about Christianity. That is absolutely false. East India Company did not want Christian missionaries to come and interfere with their cash cow. Yes. They didn't want the missionaries to come and disrupt this huge money machine that they had created in India. So actually the East India Company was against the missionaries. There was a clash between them, and in the British Parliament they were taking opposite sides. East India Company always arguing that if the missionaries come, there may be a revolt or something and it will disrupt the cash flow. Yes. The missionaries had to then argue
that we are needed because there is some savagery going on. Yeah. माता सती इसलिए अग्नि में नहीं कूदी थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। मतलब जो सती का बेस है वो ही एक झूठ है। पर क्या आपको पता है, यूरोप में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसमें अगर किसी भी स्त्री का पति मर जाता तो उस स्त्री को जला के मार दिया जाता था, क्योंकि यूरोपियंस के अकॉर्डिंग जिस स्त्री का पति मर गया वो डायन बन गई है। इसलिए इस प्रैक्टिस को विच हंटिंग कहा जाता था। यूरोपियंस हमेशा इस बात को छुपाते आए कि उनके यहाँ विच हंटिंग नाम की एक ईवल प्रैक्टिस हुआ करती थी। और जब क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में अपना कंट्रोल लेना था तब उन्होंने अपनी गंदगियों को हमारे कल्चर में मिक्स करना शुरू कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि सती रियल में हुआ क्या करती थी। तो इसके बारे में श्री राजीव दीक्षित जी ने अपने एक्सपीरियंस से ये कहा। भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से ज्यादा वनवासी जातियां हैं। 4556 है कुछ वनवासी जातियां, जैसे गोंड हैं, वो एक वनवासी जाति है। ऐसे ही गोंड जैसे 4500 से ज्यादा समूह हैं। इनके बीच में मैं पिछले कुछ सालों से घूम रहा हूं और मैंने वहां देखा कि सती का मतलब क्या होता है, सती कहते किसको है। एक बार गोंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में मैं गया और वहां किसी को सती किया जाना था। मैंने कहा चल के देखूं ये होता क्या है सती होना। तो वहां हुआ ये था कि एक महिला के पति का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, और पति का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गांव के लोग जा रहे हैं। अंतिम संस्कार वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, अग्निदाह करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी आती है और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करती है और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं। कभी कभी उनको भूल जाएं तो वो अपनी भाषा के मंत्र बोलने लगते, लेकिन मंत्र उच्चार होता है, बराबर होता है, पूरे समय होता है। जितने समय तक लाश जलती है तब तक वो मंत्रोच्चार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मंत्रोच्चार हो रहा है, पत्नी उसकी प्रदक्षिणा कर रही है, तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भाषा में सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, समाज में ऐसा कौन सा समूह है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। वो प्रश्न पूछ रही है, क्या मेरी बेटियां जिम्मेदारी लेंगी? बेटियों ने हाँ बोल दिया तो आ जाएगी, नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाएगी। फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग, जिनको हम क्या कहें महाजन, महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो आ जाएगी, ना बोल दिया तो फिर चक्कर लगाएगी पांचवा। फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचार्य लोग, उपाचार्य लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर हाँ बोला तो उनके पास आ जाएगी, नहीं तो वापस। और आखिरी चक्कर सातवां जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित, पुरोहित हम समझते हैं पूजा पाठ करें, क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर पुरोहितों ने हाँ बोला तो उनके पास आएगी, नहीं तो चक्कर लगा के गांव छोड़ के चली जाएगी और गांव कहेगा कि वो सती हो गई। ये है सती होना। और इसको बिगाड़ दिया अंग्रेजों ने। क्या कहा कि उसको जबरदस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे। फिर वो जाती कहाँ है, उसके पीछे पीछे मैं गया तो उस गांव का कोई मंदिर होगा, वहां जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताएगी। वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे। तो मंदिर में जाके पूजा करेगी, पाठ करेगी, अपना जीवन उसी से चलेगा उसका। और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आदरणीय हो जाएगी और सब उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है। हम उसको एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? वो पति के साथ जिंदा जला दी गई, वो सती है।